अगर कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ये अ, हालांकि ये वेबिनार में काफी बार कवर हो चुका है। अलग अलग प्रकार के कैंसर, अलग अलग प्रकार के स्टेजेस के कैंसर हैं। तो क्या हमारे पास इसके केसेस हैं, क्या हमारे पास ये ठीक हो सकते हैं? तो स्वामी जी वुड लाइक टू एड्रेस दिस वन मोर टाइम। ये तो रूट कॉज ऑफ कैंसर हमने आपको बता दिया है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ टिश्यूज इज कैंसर। कहीं का भी हो, वो ऐसे ही पहचाना जाता है। तो कंट्रोल ऑन ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, ये कंट्रोल खो गया। तो आप देखेंगे ये कंट्रोल आपके एक्सपीरियंस में क्या है। सो इट्स ब्रेथ होल्ड। वो अगर कमजोर हो जाएगा तो कंट्रोल ऑफ ग्रोथ ऑफ टिश्यूज चला जाता है। तो उस पर अगर हम काम करेंगे तो यू विल इरेडिकेट द रूट कॉज ऑफ कैंसर। नाउ बिकॉज द नेचर ऑफ बॉडी इज डिफरेंट, प्रकृति, शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है, सभी इंसान अलग होता है, तो उसकी कमजोरियां और शक्तियां अलग अलग होती हैं। उसी हिसाब से कैंसर उस कमजोर कड़ी के ऊपर ज्यादा प्रभाव डालता है। तो इसीलिए लोगों को अलग अलग तरीके के कैंसर होते हैं। मगर मूलभूत तरीके से फंडामेंटली द रीजन फॉर कैंसर इज lack of control over the growth of tissues, which can easily be correlated with पेरेंथोल, जिसको कुंभक के साथ में सीधा सीधा कोरिलेशन है। इसलिए कुंभक अगर आप करेंगे तो किसी भी तरीके का कैंसर हो, किसी भी स्टेज का कैंसर हो, आप देखेंगे आपको बहुत 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 रिलीफ मिलेगा और आप रिवर्सल की तरफ में जाएंगे। So leukemia, people are asking different kinds. So what I am explaining is the root cause of cancer is uncontrolled growth of tissue. Controlling factor has gone weak. Be any kind of cancer. We have leukemia patients also. We have every kind of patients. And the Kumbhak therapy works in every kind of cancer because it doesn't address the external uh, repercussion of cancer, but it addresses the root cause of cancer. The cause is same for every kind of cancer because people are of different nature. So because of certain weakness, they get into different problems as per their weaknesses. So people get different kinds of cancer, but the root cause of cancer is same for everyone. And we are treating the cause. We are treating the cause. Even you see you will get symptomatic relief if you start doing Kumbhak. The first thing that you'll observe is pain factors go down. Pain factors go down. The more control happens in your body, you'll see the spread of cancer actually stops. Kumbhak, the first thing that Kumbhak does is stop the spread of cancer. And then you'll see even if your body is getting into new areas, we have cases where the scan has shown diminishing cancer. Spread ज़्यादा हो गया था, वो कम हो गया. It has become less and it has gone also. But there are a lot of factors because of which this happens. We are addressing the root cause. There is no other way to address root cause. Cancer आपका शरीर ठीक कर सकता है. Your body can correct cancer. Nothing else. No medicine can cure cancer. There is no cure for cancer. Let me tell you, your chemotherapy, radiation therapy, your immunotherapy, they are not a treatment for cancer. Maybe you might be able to brush out some spread, but then the next time when it will come back with more force. है ना, विथ अ एडवांस स्टेज। रिलैप्स जो होता है ना, वो और भी खतरनाक होता है। रिलैप्स में एक कारण उसका ट्रीटमेंट है। तो आपका शरीर कैंसर को ठीक कर सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं। ईश्वर भी आ जाए तो ठीक नहीं कर सकते हैं। इवन गॉड कम्स, विल नॉट बी एबल टू ट्रीट यू। योर बॉडी कैन ट्रीट itself. It has all the capacity to treat itself. You'll have to enhance the recovery strength.
regenerative strength, controlling strength, detox strength, those kind of strength. And the strength increasing factor is breath hold. Kim balam sarvalam? Parvati asks Mahadev, and Mahadev says Kumbhak balam sarvabalam. Now, the first principle of Ayurveda is यथा बलम तथा चिकित्सा. जितना शरीर का बल होगा, जितना शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ होगा, उतना ही आप ठीक होंगे. उससे ज्यादा नहीं हो सकते. सो यू मस्ट इंक्रीज द फंडामेंटल रिकवरी स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, विच गेट्स इंक्रीज्ड बाय कुंभक. आज समझे, कल समझे, परसों समझे, समझना यही पड़ेगा. Otherwise, the current modality and the narrative and the understanding of cancer and the treatment of cancer is increasing cancer in the world. In next 5 to 10 years, it will become epidemic. एपिडेमिक बनने वाला है कैंसर, और उसमें एक मेजर कारण है उसका ट्रीटमेंट है. स्वामी जी, काफी लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे एक दिनेश जी हैं, ल्यूकीमिया ट्रीटमेंट कंप्लीटेड but facing many problems like stomach pain, joint pain, leg pains, and similarly बहुत सारे और भी इश्यूज आते हैं लोगों को जब वो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं. उनके पास चॉइस नहीं होती है वो ट्रीटमेंट लेने की. तो क्या इसमें कुंभक हेल्प करता है ट्रीटमेंट के साथ? पहली बात, जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चॉइस नहीं है, लेना ही पड़ेगा. मैं भी एक बार को मान लेता हूं, हालांकि ये सिचुएशन, ये सच नहीं है, पर चलो मान लिया. बट वो ट्रीटमेंट है क्या? क्या वो सच में ट्रीटमेंट है? एक तरीके से कैंसर सेल को मारने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो रेडिएशन हो, चाहे वो कीमो हो. यही किया जा रहा है. तो क्या आपके शरीर में जहर डाल के अगर आपके कैंसर सेल को मारा जाए, क्या बाकी सेल नहीं मरेंगे? आप कितना भी इसे प्रिसाइज ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें, बट डाल तो जहर ही रहे हैं शरीर में. आप शरीर में डाल तो जहर ही, आप मारने का ही तो काम कर रहे हैं. वो कैंसर सेल क्यों पैदा हुआ, इस पे तो कोई भी काम नहीं कर रहे. यू आर नॉट ट्रीटिंग द कॉज बिकॉज ऑफ विच कैंसर हैज हैपेंड, एंड यू आर कॉलिंग इट एज अ ट्रीटमेंट. पहली बात तो ट्रीटमेंट है नहीं. घर में झाड़ू लगाना टू ब्रूम योर हाउस doesn't ensure that it will not become dirty again. कचरा निकालना घर से, ये इंश्योर नहीं करता कि कचरा दोबारा नहीं बनेगा. सो झाड़ू लगाना कोई सफाई हमेशा रह जाए ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है. ना हैविंग सेड इट, बोल दिया आपको. जो भी है आपके पास में, तो यही चॉइस है आपको. यही पढ़ाया गया है, एवरीवेयर दिस नैरेटिव इज बीइंग सung, यही गाया जा रहा है. तो आपके पास भी चॉइस नहीं है, आप तो वही करोगे. ना, आपने कर लिया, आपके शरीर में जहर चला गया. सबसे पहली चीज, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू? यू इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ योर बॉडी टू दैट पॉइजन. यस और नो. यस और नो. आपको इतना समझ में आ रहा है? क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है कि आप जहर खाते हो, जहर के लिए झेलने की क्षमता तो लेके आओ पहले. हम भी मना नहीं कर रहे, ठीक है जाओ जहर खाओ. बट हम आपको ये कह रहे हैं, आप पहले झेलने की क्षमता ले आओ. यू जस्ट क्रिएट मोर टॉलरेंस एंड रेजिलियंस ऑफ दिस बॉडी. हाउ विल यू डू दैट? इज देयर अ मेथोडोलॉजी? यस, कुंभक इज दैट मेथड. आपका टॉलरेंस बढ़ जाएगा, झेलने की क्षमता, रेजिलियंस बढ़ जाएगी बॉडी की. तो इसका मतलब क्या होगा? whatever pain you are getting, whatever low lack of energy, whatever lack of metabolism, higher immunity that you are getting, everything will start balancing itself. हर चीज बैलेंस होना शुरू कर देगी. रिहैबिलिटेशन करना है कि नहीं है? कैंसर के ट्रीटमेंट करवा लिया, आप जो भी कह दो, चलो आज के टर्म्स में मैं भी आपसे वैसे ही बात कर रहा हूँ. आपने ट्रीटमेंट करा लिया, कीमो करवा लिया, रेडिएशन करवा लिया, या इम्यूनोथेरेपी करवा लिया आपने, रिहैबिलिटेशन तो करोगे ना. भाई वापस तो अपनी हेल्थ को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करोगे कि नहीं? गिरने के बाद उठने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते? क्या रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं बताइए? गिव मी व्हाट रिहैबिलिटेशन यू आर डूइंग. सब कुछ शरीर पे छोड़ दिया. कितना झेल पाएगा कीमो को, शरीर के ऊपर है. उसके बाद रिकवर कितना कर पाएगा, शरीर के ऊपर है. हु टेक्स गारंटी
कि कीमो करा के बिल्कुल रिकवरी हो जाएगी, 100% क्योर हो जाएगा? नो बडी टेक्स गारंटी। तो रिहैबिलिटेशन तो करो। आपके हेल्थ को वापस रिकवर करना है कि नहीं करना? अगर बीमार पड़ गए तो दोबारा रिकवर करना होता है कि नहीं? रिकवरी के लिए क्या करना पड़ेगा? वापस से अपने शरीर के बल को बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। किम बलम सर्वबलम कुंभक बलम सर्वबलम। कुंभक इज द rehabilitation, greatest and the most powerful rehabilitation that can be done on this planet earth. तो रिहैबिलिटेशन कर लो। क्या देखने को मिलेगा? व्हाट वी सी आफ्टर कीमोथेरेपी, पीपल टेक 1 week, 10 days, sometime 15 days टू कम आउट ऑफ बेड। बिस्तर से निकलने में इतना टाइम लग जाता है। एंड व्हेन दे स्टार्ट डूइंग कुंभक, within 24 hours दे आर ऑन देयर ओन। क्या अचीव किया उन्होंने? अरे कमाल की चीज अचीव कर दी, जादू कर दिया उन्होंने अपनी लाइफ में। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। आपको शायद समझ ही ना आए, मगर आपको बार बार मैं एक ही बात बताऊंगा, आपका शरीर जो है ना, यही आपको ठीक कर सकता है, दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकती। तो इवन इफ यू हैव गॉन थ्रू शेड्यूल ऑफ कीमो रेडिएशन और वट एवर, यू मस्ट डू रिहैबिलिटेशन। आप करेंगे तो उसका नुकसान, साइड इफेक्ट, कीमो का साइड इफेक्ट, रेडिएशन का साइड इफेक्ट, ये सब कम होगा। एंड रिकवरी स्ट्रेंथ विल इंप्रूव एंड योर बॉडी विल रिकवर फास्टर। तो क्या होगा? एक और काम करेंगे। डज कीमो इंश्योर दैट देर विल नॉट बी अ रिलैप्स? क्या आपका ट्रीटमेंट रिलैप्स होने से ना हो, ऐसा इंश्योर करता है? कोई गारंटी देता है? नहीं देता। 50 साल पहले रिलैप्स कितने टाइम पे होता था? 10 साल में। आज रिलैप्स कितने टाइम पे होता है? 2 साल में। क्या हो गया? Why? We have lost the recovery strength of this body. We have lost the tolerance of this body. We have lost the resilience of this body. Metabolic factor has gone down, critically gone down. कुंभक करेंगे, इंश्योर करेंगे कि रिलैप्स देर से हो या ना। क्या ये ट्रीटमेंट है? क्या ये करना चाहिए? यू थिंक। आपको सोचना पड़ेगा। हम आपको एक बात, बहुत खराब बन जाते हैं, चलो आप हमें गालियां दे दो, कुछ भी कर दो, एरोगेंट होके बोलते हैं कुंभक के बगैर आप ठीक नहीं हो सकते, जाओ दुनिया में घूम के आओ। चलेगा? आप गालियां दे दो, चलो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुंभक के बगैर कैंसर ठीक नहीं हो सकता, साफ बोलो। दूसरी बात, कैंसर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रिलैप्स और कम होगा, और कम टाइम में होगा। 6 महीने रिलैप्स होना शुरू हो जाएगा अगले 5 साल के अंदर। वॉट एवर ट्रीटमेंट इज बीइंग डन, इट विल क्रिएट मोर केसेस ऑफ कैंसर। इम्यूनोथेरेपी जितना इस दुनिया में होगा, उतना म्यूटेशन हो जाएगा जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स से म्यूटेशन को कौन ठीक करेगा? कुंभक ही ठीक कर सकता है, दुनिया की कोई ताकत ठीक नहीं कर सकता। एरोगेंट होके बोल रहा हूँ। आज सुनो, समझ में आए नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, 5 साल बाद यही समझ में आएगा। यही समझना ही पड़ेगा, कोई चांस ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं। सो कल को क्या हो आपको खुद नहीं मालूम, आज एम्पावर करना शुरू कर दो। फॉर श्योर, 100% गारंटी, आपकी लाइफ एम्पावर हो जाएगी। 100% गारंटी। कितना आप रिकवर कर पाओगे डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों के ऊपर। वन ऑफ थिंग इज हाउ मच मेडिकेशन यू हैव टेकन, हाउ मच यू हैव लॉस्ट योर रिकवरी स्ट्रेंथ। एक बार ये शरीर ने कह दिया ना, भैया दुकान बंद करते हैं, बस हो गया, तुमने बहुत टॉर्चर कर लिया, कोई नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप, नोबडी कैन स्टॉप। बिफोर दैट, इफ यू हैव अ चांस, पुश कीजिए, हर एक की लाइफ बढ़ेगी, हर एक की लाइफ एम्पावर होगी, हर एक रिकवरी की तरफ में जाएंगे, ये सब गारंटी दे सकता हूँ। बट बिना कुंभक के आप ठीक नहीं होंगे, ये भी मैं गारंटी दे सकता हूँ। और ये कैंसर बढ़ेगा ही बढ़ेगा इस दुनिया में। अगले 5 साल में क्या होने वाला है आपको आज शायद समझ भी नहीं। सो इसलिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट देन यू विल हैव टू टेक द स्टेप, यू विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज भी आप ही रिस्पॉन्सिबल है ना। आपको लगता है शायद हॉस्पिटल, WHO और कोई रिस्पॉन्सिबल, आज भी आप ही रिस्पॉन्सिबल है। टुमारो इफ यू गेट क्रैश, नोबडी विल टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने इतनी दवाइयाँ खिलाई हैं, इसकी वजह से क्रैश हुआ।
Nobody is going to take that responsibility. Still you are taking your responsibility. बट आंखें खोलिए, सही दिशा में सोचिए, इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिरकार आपको ही लेना पड़ेगा. There's a question, some questions have been shared with us in Google Form. एक सवाल है, मैं I have oral cavity. How can I do this therapy? See, if you have oral cavity cancer or whatever kind of cancer you are functioning, isn't it? आप शरीर चलाते हैं कि नहीं, कामकाज करते हैं कि नहीं? And whenever you make effort, you hold your breath. Yes or no? This therapy is not about breathing, it is about holding the breath. That means strength creating mechanism of your body. आप एफर्ट तो लगाते हो ना, चेयर से उठते हो, बेड से उठते हो, लेटते हो, उठते हो, हाँ या ना? यू आर मेकिंग एफर्ट. हाउ यू आर मेकिंग दैट एफर्ट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ बिहाइंड. जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व योरसेल्फ. अपने आप को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें. एनी काइंड ऑफ एफर्ट दैट यू मेक, देयर इज अ ब्रेथ होल्ड बिहाइंड. सो वट एवर काइंड ऑफ situation you have, holding the breath is always done by this body. Even if you don't breathe through your nostrils, if there is a pipe in your esophagus, breath hold is not an option. You are doing it. बिना उसके आप एफर्ट नहीं, करवट भी नहीं बदल सकते. सो वी आर वर्किंग ऑन दैट एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म ऑफ बॉडी. ठीक है ना? आपका माइंड का भी जो एफर्ट लगता है ना, उसके पीछे भी ब्रेथ होल्ड है. जरा याद करने की कोशिश कीजिए किसी पुरानी चीज को, आप देखेंगे सांस रुक जाती है, तब आपको याद आता है. So we are working on breath hold. If you are living, you are breathing. Wherever you are breathing from, but you are breathing. Yes or no? If you are living, you are breathing. If you are breathing, there is always a hold. There is always hold that can be done. So anybody and everybody can do kumbhak because this is fundamental to action of life. अगर जिस दिन आपने सांस लेना रोक दिया, आप कुंभक नहीं कर सकते. तो केवल कैवल्य कुंभक होगा. वो आपके जरिए नहीं किया जाएगा, वो प्रकृति के जरिए किया जाता है. तो ब्रेथ होल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट कुंभक, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्राणायाम, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योगा. हमें आपको समाधि नहीं देनी, मुक्ति नहीं देनी, मोक्ष नहीं देना, हमें आपको हेल्थ देना है. दिस कुंभक इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेद. यू कॉल इट अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योगा. ठीक है ना? आयुर्वेद का राजा है कुंभक, मगर 92% ऑफ आयुर्वेदा इज लॉस्ट. So we have lost the fundamentals of Ayurveda. Now with just Ayurvedic medicine, we can't do much. But Kumbhak and Ayurvedic medicine can create magic. आज शायद समझ में ना आए, मगर धीरे धीरे करके मैंने कहा कल भी समझ में आएगा, तो समझना यही पड़ेगा. We can create a very powerful method of reversing cancer if Ayurveda comes together with Kumbhak. If Ayurveda actually incorporates Kumbhak, which was earlier there as a part of Ayurveda. Without that, we can't rule the world. We can't create solutions. हम solution उस कुंभक के बगैर नहीं कर सकते create, especially in today's time. स्वामी जी, many people equate diet and cure. हाँ, तो कुंभक थेरेपी के साथ डाइट में चेंज करना पड़ेगा. या एक क्वेश्चन है कि स्टमक कैंसर है, तो मेरी लिमिट इनटेक बहुत कम है, बहुत वीक फील करते हूँ. हाउ विल दिस थेरेपी हेल्प? पहली बात तो आपकी इंटेक बढ़ जाएगी. दूसरी बात, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाएगा, पचाने की क्षमता बढ़ जाएगी. तीसरी बात, आपके माइटोकॉन्ड्रिया का हेल्थ बढ़ जाएगा, जिसके कारण एनर्जी रिलीज होता है आपके बॉडी में. तो कुंभक करने से आपको क्या मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा? आपकी भूख अच्छी हो जाएगी, फर्स्ट. सेकेंड थिंग, यू विल बी एबल टू डाइजेस्ट विच अर्लियर यू वर नॉट एबल टू डाइजेस्ट. जो पहले आपको पचन नहीं होता था, पाचन नहीं होता था, इसका आज हो जाएगा. आपके एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी. लिवर फंक्शन इंप्रूव हो जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंप्रूव हो जाएगा आपके गट में, और एब्जॉर्प्शन इंप्रूव हो जाएगा. आपको मैं बैठा के ना साल भर पढ़ा भी सकता हूँ, मतलब थिंग ये, आप कितना भी पढ़ लो, आप ठीक नहीं हो गए. ये भी आप स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए. तो क्या और क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर हमने दुनिया का पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया, कुंभक एंड माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ. व्हाट वी फाउंड इन 4 weeks ऑफ डूइंग कुंभक, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ इंप्रूव्ड ड्रास्टिकली. सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने गूगल में पढ़ा होगा,
इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ता है तो कैंसर ठीक नहीं होगा. तो you'll have to reduce the inflammatory marker of your body. Now, what we also found that in 4 weeks of Kumbhak, the inflammatory markers reduced drastically. अब आप अल्कलाइन वाटर पियो, ये पियो, वो पियो, फूड खाओ, मगर फूड उतना ही डाइजेस्ट होगा जितनी आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ है. दोबारा से बोल रहा हूं, आपके एक्सपीरियंस में ये है, फूड डजंट इंक्रीज योर स्ट्रेंथ. 80 साल के इंसान ने 80 साल तक भोजन किया, सुपरमैन बन जाना चाहिए था, बन गया क्या? कमजोर होता गया. 80 साल तक भोजन किया, कमजोर ही होता गया. 20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर, 50 ईयर, जस्ट सी द ट्रैक. आपको एक्सपीरियंस है इस बात का, भोजन आपकी शक्ति नहीं बढ़ाता है. आपकी शक्ति के हिसाब से भोजन का पचन पाचन होता है. प्लीज गेट इट वेरी वेरी क्लियर. प्लीज गेट इट वेरी वेरी क्लियर. इट इज नॉट दैट यू आर नॉट इंटेलिजेंट पीपल, यू आर इंटेलिजेंट पीपल. आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस बताता है कि भोजन से स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता है, कमजोर होता है. जिस दिन आपने ज्यादा भोजन कर लिया, उतना उतना ही सोओगे, उतना ही कम एक्टिव रहोगे. सो क्या शुड फूड बी इम्प्रूव? यस, इम्प्रूवमेंट नो डाउट. मगर इफ यू थिंक फूड कैन बी अ थेरेपी, नो, फूड कैन नॉट बी अ थेरेपी, नॉट एट ऑल. If you have strength left in your body, then food, through food you can improve yourself, but it is not food which is improving yourself. It is your body's innate strength which is still left. आज आप जिंदा है ना, इतना जहर खाने के बाद भी अपने शरीर को शाबाशी दी कि इसने बचा लिया आपको. तो आपके शरीर की जितनी शक्ति होगी उतना ही भोजन भी पचेगा, उतना भोजन एब्जॉर्ब होगा, उतना आपका शरीर रिकवर करेगा. आपका शरीर रिकवर करेगा अपने आप को. दुनिया की कोई ताकत रिकवर नहीं कर सकती. नो फूड, नो मेडिसिन, नथिंग. आज समझो, कल समझो, परसों समझो, 10 साल बाद समझो, समझना यही पड़ेगा. और ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आता. समझने के लिए आप तैयार नहीं है, रेडी नहीं है, क्योंकि किसी ने कुछ बता दिया आपको. अपनी गुलामी वाली मानसिकता हमको हटानी ही पड़ेगी. नहीं तो हम तो रिकवर नहीं कर सकते, हम तो, हमारी लाइफ अच्छी नहीं हो सकती. तो क्या भोजन अच्छा करना चाहिए? क्या हम आपको भोजन के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, हम बताएंगे, थोड़ा पर्सपेक्टिव बताएंगे भोजन के बारे में. मगर हम आपका डाइजेशन इंप्रूव कर देंगे ना, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कर देंगे ना, तो कुछ भी खाओ. क्या प्रॉब्लम है? हम्म? Swamiji, many people struggle and there are questions about metastasis, spread of cancer from one place to another. So can Kumbhak help in those conditions? See, Kumbhak can help stop cancer, reverse cancer. I can guarantee that. मगर देर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स उसके साथ में. क्यों? वो मैंने नहीं जोड़ा हो, वो आपने जोड़ा हो. आप जहर खिलाते रहो और दूसरी तरफ आपको जिंदा रखने की कोशिश की जाए, जहर का असर ज्यादा होगा, खत्म हो जाएगा शरीर. इसमें दूसरा बंदा करेगा क्या? वो तो कोशिश कर रहा है भाई जिंदा रहे. सो द मोर, एक बात बताओ ना मुझे, आप सभी समझदार लोग, एक बात बताओ मुझे, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल कितने लोग डालेंगे? हाथ ऊपर उठाए ना, सारे विंडो शॉपिंग कर रहे हैं ना भाई, कैमरा तो खोलना नहीं है. है ना? ज्ञान ले लेते हैं, मगर ज्ञान लेने से कुछ ठीक थोड़ी होता है. कितने लोग पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे? हाथ उठाओ, चाहे रियल चाहे वर्चुअल, कुछ भी उठाओ तो सही. कितने लोग डालेंगे पेट्रोल की गाड़ी में डीजल? कुछ लोग शायद, मगर ज्यादातर लोग नहीं डालेंगे ना. क्यों? कॉमन सेंस है भाई, वो डीजल के लिए डिजाइन ही नहीं. मुझे आप बताओ, आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था? कितने लोग एग्री करते हैं कि आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था? क्या हमारे कॉमन सेंस भी चली गई है? क्या केमिकल खा के ह्यूमन लाइफ हेल्दी हो गया? 100 साल का एविडेंस बताओ मुझे, एक भी एविडेंस दो. क्या डायबिटीज ठीक हो गई किसी की? क्या ब्लड प्रेशर ठीक हो गया? क्या थायराइड ठीक हुआ? 80% बीमारी क्रॉनिक होती है, एक भी ठीक नहीं हुआ. एक भी एविडेंस नहीं है, एक भी प्रूफ नहीं है.
और सब लाइन लगा के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं ना वहां पे, बिना किसी एविडेंस के। एक एविडेंस नहीं है। अच्छा, ये सब बीमारियां बढ़ रही हैं कम हो रही हैं? सब बढ़ रही है ना? तो आपका ट्रीटमेंट बीमारी बढ़ा रहा है कि नहीं? मगर क्या करें, बचपन से पढ़ाया गया है, मंदिर तो वही है, मत्था तो वहीं टेकना है जाके। क्या करें, इससे निकलने में भी टाइम लगेगा। सो इतना कॉमन सेंस तो सबको है ना। अब देखो, मैं तो कड़ा बोल रहा हूँ, मुझे, मैं आपसे माफी भी मांग लेता हूँ इससे, इसको लेके। मगर आपको भी तो पूछना चाहिए सवाल। नाउ यू आर नॉट लेफ्ट विथ एनी अदर ऑप्शन। क्या करें फिर? कम से कम वो चीज तो इनकॉर्पोरेट कर लो जो आपको रिकवरी की तरफ में ले जाए। इतना भी नहीं सोचना, तो फिर क्या कर सकते हैं, कैसे ठीक होंगे बताइए ना। कम से कम वो तो इनकॉर्पोरेट करो। भाई ठीक है, आपको बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट, केमिकल्स खिलाया गया, तो कम से कम वो जो कि आपको थोड़ा बचा ले इससे, वो तो काम करना ही पड़ेगा ना। नहीं, आपका मोमेंटम बहुत बढ़ गया, कि द मोमेंटम ऑफ डिजीज हैज इंक्रीज अ लॉट। बट देन मुझे बताओ, एक दिन में अगर कुंभक करके आपको एक्स्ट्रा मिलता है, लाइफ मिलती है एक दिन की, चाहिए कि नहीं चाहिए? और ये कौन सोचेगा? ये मैं तो समझा सकता हूँ केवल, ये आपको सोचना पड़ेगा। हम्म। Okay. There are questions about different kind of cancers. We will not get into that. We request people to watch the webinar video again. But there is a sweet question over here. In a city like Delhi where pollution is very high, can Kumbhak be effective? And will the person be able to fight cancer? First of all, please understand it. One time and again, I'm saying it is not about breathing, it is a breath hold. दिल्ली में रहते हो तो काम नहीं करना क्या? दिल्ली में रहते हो तो आपके लिए तो और भी टॉलरेंस बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ये जो एनवायरनमेंट खराब है इसका असर कम हो। सो इट इज नॉट अबाउट ब्रीथिंग, इट इज अबाउट ब्रेथ होल्ड, इट इज अबाउट गेनिंग स्ट्रेंथ, इट इज अबाउट क्रिएटिंग बल। Please don't correlate what we are doing Kumbhak with pranayam, yoga, and so on and so forth. Please don't correlate with that. तो दिल्ली में है तो कुंभक के बगैर आप हेल्दी रह ही नहीं सकते, गारंटी दे दूं क्या? और कुंभक करेंगे तो आप बचे रहेंगे। क्या बीमार नहीं पड़ेंगे? हो सकता है बीमार हो, बट रिकवरी जल्दी हो जाएगी कुंभक करेंगे तो। रिकवरी नहीं चाहिए। If you have created an ecosystem where nobody can become healthy, if you are doing Kumbhak, it can ensure that your recovery is faster. The chances of getting into disease and difficulties will be less. तो आपके लिए तो, दिल्ली वालों के लिए तो कुंभक आपके लिए अमृत है, इसके बगैर आप सही रह ही नहीं सकते हो। तो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग। बॉडी का अपना जो स्ट्रेंथ होता है, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ होता है, इम्यून का स्ट्रेंथ होता है, रीजेनरेटिव स्ट्रेंथ होता है, डिटॉक्स का स्ट्रेंथ होता है, रीजेनरेटिव स्ट्रेंथ होता है, कंट्रोलिंग स्ट्रेंथ होता है। ये जितने भी स्ट्रेंथ हैं, ये कुंभक की वजह से होता है। द अमाउंट ऑफ ब्रेथ होल्ड, अगर आप अपने दादा दादी नाना नानी को याद करेंगे, उस समय कैंसर नहीं था और आज है, तो क्या लूज कर दिया आपने? यू हैव लॉस्ट द एफर्ट मेकिंग एबिलिटी। वो जितना एफर्ट शरीर से लगा सकते थे आप नहीं लगा सकते हो। वो जितनी सांस रोक रोक सकते थे आप नहीं रोक सकते हो। तो व्हाट हैव यू लॉस्ट? ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी, कुंभक कैपेसिटी। व्हाट शुड बी इंक्रीज? कुंभक कैपेसिटी। कोई और ऑप्शन है? नो। Swamiji, any advice for a person suffering from anaplastic thyroid cancer? Immunotherapy is going on. Similarly, there is a question that I have cervical cancer. एक कीमो कंप्लीट हो गया. Should I continue with chemo or move to Kumbhak? कैसी बातें बोल रहे हैं? शुड वी एडवाइज यू फॉर कीमो और नॉट कीमो? हमने आपको बोला है कि कीमो करना चाहिए? हाँ। और फिर हमारे पीछे कौन कौन पड़ जाएगा आपको मालूम है ना?
हमारे पीछे कौन कौन पढ़ाना चाहते हैं आप? फिर तो इतना भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। हेल्प हम कर रहे हैं। अगर एक तरीके का सेल है, दूसरे तरीके से उसके जैसा नहीं है, बड़ा अजीब सा बन गया, तो आप समझ ही बॉडी समझ ही नहीं पा रहा कि एक्चुअल में अच्छा सेल कौन सा है, ये वाला है ये वाला है। डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पा रहे हम टिश्यूज में, कॉल टाइप्स ऑफ टिश्यू में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पा रहे। यही तो कैंसर की, इसको कोई भी नाम दो, कोई भी नाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम देने से कैंसर कोई ठीक हुआ? एक बात बताओ आप मुझे। आप अलग अलग नाम दे देते हो, कैंसर कोई भी ठीक होता है? कोई भी ठीक नहीं होता। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने इसको क्या नाम दे दिया? बट बेसिकली जो बॉडी टिश्यू बनाता है, पहली बात तो एक बात मैंने कहा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, वो कब रुकना है उसको मालूम ही नहीं। दूसरा पार्ट मैंने नहीं बोला था, मॉर्फोलॉजी, और कह लीजिए कि उसकी शेप एंड साइज या टाइप ऑफ टिश्यूज में भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम एक और बात कहते हैं, कैंसर का एक और मीनिंग है, अ कंफ्यूज पर्सन विल गेट इनटू कैंसर वेरी इजीली। और दूसरी चीज हमने देखी है कि कैंसर के लोगों में कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन क्यों होता है? इफ यू आर नॉट एबल टू सी थिंग्स प्रॉपरली, देन ओनली यू विल गेट कंफ्यूज। इसके अलावा कोई और चीज है जिसकी वजह से कंफ्यूज होंगे? इफ यू आर नॉट एबल टू परसीव और सी थिंग्स क्लियरली, तो कंफ्यूजन होगा। फॉर सीइंग थिंग्स क्लियरली व्हाट यू नीड, आपको चाहिए क्या? टू सी थिंग्स क्लियरली, टू फोकस समवेयर, यू टेंड टू होल्ड योर ब्रेथ टू फोकस प्रॉपरली। सीधा सीधा कोरिलेट कर रहा हूं, इफ यू हैव अ कंफ्यूजन, योर ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी इज वीक, दैट इज व्हाई यू आर कंफ्यूज। दैट इज वाई वी ऑल्सो से कुंभक करने से इंटेलिजेंट क्वोशिएंट आईक्यू बढ़ जाता है, मेमोरी बढ़ जाती है, एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ता है। दैट वी हैव प्रूव्ड इन चिल्ड्रन एंड पीपल हु आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और इसी तरीके के वो टेस्ट के थ्रू गुजरते हैं। तो इफ दे डू कुंभक, suddenly that same examination becomes easy for them. Clarity. When you say clarity, have you defined mind? Is there a definition of mind? आप ये सब बातें अगर इसमें जाना भी चाहेंगे तो क्या आपको मालूम है, देर इज नो डेफिनेशन ऑफ माइंड? मेंटल इश्यूज आर बिकमिंग एपिडेमिक एंड मेडिसिन कैन नॉट ट्रीट एनी मेंटल इशू। तो कहने का मतलब कंफ्यूजन की बात भी अगर है, मेंटल कंफ्यूजन हो जाए तो फिजिकल कंफ्यूजन भी होता है। इफ यू आर नॉट एबल टू सी थिंग्स क्लियरली, मेंटल कंफ्यूजन क्या होता है? इफ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स क्लियरली। ये दोनों ही कुंभक से जाता है। दैट मीन्स बॉडी का अपना जो इंटेलिजेंस फैक्टर है, बॉडी का, बता रहा हूं, बॉडी का इंटेलिजेंस फैक्टर वीक होने से टिश्यू डिफरेंशिएशन में डिफिकल्टी आती है, यानी उसको अच्छे टिश्यू बनाने में डिफिकल्टी आती है। बॉडी का इंटेलिजेंस कुंभक से बढ़ता है, जिसकी वजह से वो सही टिश्यू बनाने की तरफ में जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको कहा, अगर इसके बारे में हम बात करना चाहें तो मैं बहुत देर तक आपसे बात कर सकता हूँ इसके बारे में, हर तरीके से बात से कर सकता हूँ, उसके बाद भी आप ठीक नहीं होंगे, ये भी मैं गारंटी कर देता हूँ। ओनली इफ यू डू कुंभक, यू विल बिकम बेटर। कितना भी ज्ञान ले लीजिए, आप ठीक नहीं हो सकते हैं, ये भी मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। Thank you, Swamiji, for taking our time to answer many questions. Uh, Hopefully, all participants who are looking for treatment for different kind of cancer would have got their answer also. Cancer of all kinds and stages is cancer. Cancer environment को correct करना है. So we will kind of stop over here. All right. Thank you, Swami.